آج کی پوڈ کاسٹ میں ہماری مہمان ہیں محترمہ عفت نوید صاحبہ، ایک حساس لہجے کی افسانہ نگار اور اپنی زندگی کے تجربات کو لفظوں میں ڈھالنے والی خود نوشت نگار۔ ان کی تحریروں میں عورت کی داخلی دنیا، سماجی کشمکش اور انسانی رشتوں کی نزاکت بڑی خوبصورتی سے جھلکتی ہے۔ عفت نوید صاحبہ کا تخلیقی سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ادب محض اظہار نہیں بلکہ زندگی کو سمجھنے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ آداب عفت نوید صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور بہت ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی گفتگو کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور بیک ٹو بیک آپ کی 2 کتابیں فاسٹ میں پبلش ہوئی، ایک بھی چلتے رہے، اور کچھ آپ ہمیں ایک بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آڈینس کو پتہ چلے کہ دیپ جلتے رہے کس بارے میں، اور ردی جو ہے اس کے موضوعات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم افسانے ہی لکھتے تھے، ایسے ہی 5 سال میں ایک افسانہ لکھ لیا، اور کیونکہ شادی تھی اور زیادہ شادی شدہ زندگی میں تو موقع نہیں ملتا، اور کیونکہ ہمارے شوہر بھی میر احمد نوید ایک فل ٹائم شاعر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، تو اس وجہ سے بالکل ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ ہم کیونکہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں تو اس لیے بہت وقفہ آیا کرتا تھا۔ لیکن جب شادی کے بعد ہم نے پہلا افسانہ لکھا تو ہم نے احمد کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے میاں کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ بہت بکواس لکھا ہے، تو ہم نے پھاڑ کے پھینک دیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ان کی کتاب آ رہی تھی ہاں اور نہیں کے درمیان، تو ہم نے ان سے کہا کہ اس کا ہم پیش لفظ لکھیں، تو انہوں نے کہا ہاں لکھو، تو میں نے کہا میں نے تو لکھ بھی لیا ہے، تو کہنے لگا سناؤ۔ ہاں، تو پھر ہم نے ان کو سنایا ڈرتے ڈرتے، تو کہنے لگے تو بہت اچھا لکھا ہے، پھر وہ انہوں نے اپنی کتاب میں چھاپ بھی دیا، تو وہاں سے پھر ہمیں ہمت بندھی، پھر ہم نے ایک افسانہ لکھا، اور پھر بھی ڈر رہے تھے کہ اب پھر کہیں گے کہ پھاڑ دو بہت برا لکھا ہے، لیکن انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھا لکھا۔ اور اسی وقت آرٹس کونسل کے زمانے میں نقد و نظر محفل ہوا کرتی تھی، جو نقاش کاظمی صاحب اس کے منتظم ہوتے تھے، تو ان کو فون کر دیا کہ عفت کا افسانہ آپ اس محفل میں رکھیں، تو انہوں نے افسانہ رکھا، اور پھر اخلاق احمد اور دوسرے بڑے بڑے افسانہ نگار تھے، انہوں نے افسانے کی تعریف کی، تو پھر ذرا سا اعتماد بھی بحال ہوا، اور پھر اس کے بعد لکھنا شروع کیا، لیکن بہت وقفہ آتا تھا، کبھی 10 سال کا کبھی 5 سال کا۔ صحیح۔ اب آپ کیونکہ تعلیم و تدریس سے بھی تعلق رکھتی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو بھی ریز کیا ہے، تو آپ کو کس طرح کے مسائل اور کس طرح کے آبسٹیکلس تھے آپ کی نگاہ میں، کس طرح کی ڈیفیکلٹیز تھیں جو آپ کو یعنی جن کو آپ کو کراس اوور کرنا پڑا، اوور کم کرنا پڑا، اور پھر لکھنا بھی ایک پورے مشق سخن ہے، آپ کو بہت کنسنٹریشن چاہیے، فوکس آف انرجی چاہیے، تو آپ کچھ بتائیں گے ان مسائل کے بارے میں؟ تمام ماؤں کی طرح ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی پہلی ترجیح ہمارے بچے تھے، ان کی تربیت تھی، اور سب سے بڑھ کر کچھ ایسا وقت ہم نے گزارا کیونکہ ہمارے میاں کی طبیعت خراب رہتی تھی، تو صرف ایک فرد کی آمدنی سے گھر چل رہا تھا، تو اس میں بڑا مسئلہ تھا سروائیول کا، اس زمانے میں بڑا مسئلہ تھا ایجوکیشن، اور پھل فروٹ اور مٹھائی کیک، یہ تو بہت بات کی بات ہے، صرف سروائیول کا مسئلہ تھا کہ ہم زندہ رہ پائیں، اس کے لیے دگو دو کرتے رہے۔ پھر تھوڑی بہت جب بہتر انکم ہوئی تو پھر ہم نے اور اس زمانے میں کرائے کے مکانات تبدیل کرتے رہتے تھے، بڑا مشکل وقت تھا، تو اس وقت یہ تو نہیں سوچا کہ ہمیں بھی لکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے، لیکن بچوں کے بس تعلیم پر دھیان تھا، اور وہ بھی یہ کہ بچے 6 مہینے اسکول جاتے تھے، 6 مہینے گھر پہ رہتے تھے، تو ہم ان کو گھر پہ ہی پڑھاتے تھے، بچے بہت ذہین تھے، اور پھر یہ ہوا کہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد پھر وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھانے لگے اور سیلف گرو ہوئے وہ، تو یہ سب جو زندگی کی سختیاں تھیں نا، اس نے بھی، اور ہم الٹے سیدھے محلوں میں رہے، لوگوں سے ملنا ملانا اور تماشائے روز و شب دیکھنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ برے وقت میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت زیادہ لوگوں کا پتہ چلتا ہے، تو اس سے میرے اندر افسانہ لکھنے کی تحریک پیدا ہوئی، اور اسی سے جو میرے افسانوں میں جو موضوعات ہیں نا وہ سماجی نوعیت کے، اور کافی حد تک سارے افسانے جو ہیں کہیں نہ کہیں حقیقت پر بیس ہیں، تو یہ وجہ بنی۔ واہ، بہت زبردست۔ یہ میرے خیال سے ایک ہمیں ونڈو پرووائڈ کرتا ہے اس طرح کا افسانہ، ہماری سماجی جو یا ہمارے ایون نفسیاتی جو صورتحال ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور کچھ آپ ایکسپلین کریں دیپ جلتے رہے کے اندر کس طرح کے آپ نے جو تجربات تھے ان کو محسوس کیا، آپ کے نزدیک جو آپ کی لائف کے اندر امپورٹنس، یعنی کس طرح کی سفرنگ سے آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور کیا وہ آپ کیا کہیں گے ہائی لائٹس ہیں آپ کی لائف کی جن کو آپ نے چاہا کہ یار ان کو کبھی یعنی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے؟ بالکل، جیسے میں نے بھی ذکر کیا نا کہ میرے میاں جو ہیں بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو کچھ بائی پولر کچھ ڈس آرڈر کے بھی مسائل تھے، تو
हमारी शादी हुई तो हमारे देवर हम दोनों को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, पता चला वो जिनकी फैमिली साइकेट्रिस्ट हैं, तो उन्होंने इनको इंजेक्शन भी लगाए और ढेरों दवाएं दे दी। और फिर लेकिन उसके बाद इनको शादी के 10 महीने बाद एक सख्त किस्म का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, और इतना खतरनाक था वो कि फिर मैं बच्चे के साथ भी इनके साथ नहीं रह सकती थी। तो बच्चा तो मैंने 2 महीने का बच्चा तो अपनी बाजी के हवाले किया और मैं इनको संभालने में लग गई। तो मुझे समझ नहीं आता था कि इनको ये नर्वस ब्रेकडाउन क्यों हुआ है, जबकि इतने हार्ड टैबलेट ले रहे थे, इंजेक्शन इनको मॉडिकेट लगा करता था 4 महीने में। तो फिर मुझे ऐसा भी लगा, फिर मैंने ना इनकी इतनी हार्ड दवाएं और इंजेक्शन के बावजूद भी इनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तो और ये इतने वीक और हाथों में राशा और जबान में लुकनत थी, तो मैंने वो सारी दवाएं खत्म की और मुझे लगा कि इनका इलाज सही नहीं हो रहा है और ये इस हद तक खतरनाक मरीज नहीं है, इनका मर्ज ही नहीं है, बल्कि इनका तो मर्ज ही नहीं है। और ये क्योंकि बहुत गहरी सोच रखते हैं, इस वजह से ये जरा डिस्टर्ब रहते हैं। तो इनको तो तब मुझे ये ख्याल आया कि हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट सही नहीं है। हमारे यहाँ वैसे भी सेहत का आपको पता है कि बहुत बुरा हाल है, और इस तरफ तो है ही नहीं। तो हम इनके साथ जिंदगी गुजारते रहे, और हम इस दौरान ऐसे भी कई मराहिल आए कि जिसमें बहुत सारे लोग कहते थे कि, बल्कि इनके डॉक्टर ने भी कहा कि ये ठीक नहीं होंगे, इस मर्ज के साथ जिंदगी गुजारना बीवी के लिए बहुत मसला हो जाता है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे अपने बच्चों के साथ भी ये मर्ज हो सकता है। तो इस मर्ज को लेकर मैं नहीं इनको छोड़ूंगी। हाँ, कोई और वजह हो तो बेशक इनको छोड़ा जा सकता है। तो जैसे तैसे भी हम इनके साथ नहीं गुजारते रहे, क्योंकि इंसान बहुत अच्छे हैं, शायर बहुत अच्छे हैं, जैसे एक मर्ज है। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं क्यों ना ये सारी रुदात लोगों को बताऊं और लोगों से कहूं कि अगर हम इस तरह के मरीजों का सही देखभाल करें और इनके प्यारे इनको परेशान होकर डॉक्टर्स के हवाले ना करें, तो हमारे यहाँ भी बहुत बेशुमार दानिश्वर पैदा हो सकते हैं, बेशुमार साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में कुछ न कुछ नफ्सियाती उठापटक होती है। लेकिन अगर आप इनको ये सोचेंगे कि ये हमारे मुआशरे में सही अदम तवाज़ुन का शिकार कर रहे हैं या अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर हम भी बेशुमार लोगों के मैं आपने भी देखा होगा कितने ही ज़हीन लोग गलियों की नजर हो गए, बच्चों की नजर हो गए, पागल खाने पहुंच गए या फिर मर गए। तो इसलिए फिर मैंने ये किताब लिखी, और उस किताब में फिर क्योंकि अब लिखना शुरू कर दिया था तो बहुत सारी हकीकतें भी हैं, लेकिन फिर लिखना शुरू किया तो लिखती चली गई। लेकिन मेन इसका यही था कि लोगों को पता चले कि इस मर्ज के साथ भी रह सकते हैं। और आप देखते हैं आज अहमद नवेद का जो मुकाम है शायरी में, वो बहुत कम लोगों को का नजर आता है। और हम देखते हैं मीर तकी मीर के साथ भी ये मसला था, और लेकिन वाकई बहुत मुश्किल होता है। और खुदा का शुक्र है कि हम गुजर गए उस दौर से, शायद खुदा ने हमें आसाब बहुत मजबूत दिए थे, वो सब हो गया और हम एक बहुत अच्छा शायर मुआशरे को दे पाए। और मेरे ख्याल से इसके पीछे जो सबसे अहम मेरे ख्याल से एक सपोर्ट थी वो आपकी की थी। बिल्कुल। और ये वजह है कि अहमद नवेद साहब जो है वो इतनी एक स्टेबिलिटी की तरफ चले गए, उस मैडनेस से निकल गए। अब मैं चाहूंगा कि कुछ आपके जो अफसानवी किताब है रद्दी, सबसे पहले तो मुझे बताइए आपने नाम ये क्यों सजेस्ट किया, क्यों रखा ये नाम? 10-15 साल पहले मैंने एक अफसाना लिखा, उसका उन्वान था रद्दी। तो वो मैंने अपने घर में बच्चों को पढ़ के सुनाया और मियाँ को भी पढ़ के सुनाया। तो रामिश ने कहा, मेरे मछले बेटे ने, कि अम्मी आप अपनी जो किताब है ना उसका नाम रद्दी रखिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैंने रद्दी रखा। मैंने मुझे ख्याल आया कि शायद अहमद नवेद साहब के एक शेर है कि किसी को है ये सहीफा, किसी को रद्दी है। अच्छा, उससे तो आपने नहीं, फिर बच्चे अफसाने पसंद करते हैं, बाप की शायरी को भी सराहते हैं, और बच्चे जो कहें ना वो मैं वही करती हूँ, क्योंकि अफसाने तो मेरे हैं ना। अब जैसे इसके टाइटल है, ये रामिश ने बनाया है, तो बच्चों ने कहा अम्मी, और अब भी रामिश बहुत खुश होता है कि अम्मी आपकी किताब का नाम बहुत अच्छा है। तो आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहूंगा मैं, किस तरीके के अफसाने हैं, क्या मौजूआत हैं। मुझे याद पड़ता है आपने एक दफा बहुत पहले मुझे एक अफसाना सुनाया था जिसके अंदर एक ख्वाजा सरा के बारे में लिखा। तो आप कुछ बताएंगे वो किस तरह का एक्सपीरियंस है जिसको आपने एम्बॉडी करने की कोशिश की है उस अफसाने में?
मैं ना बस मेरी आदत है भिखारियों से बात करती हूँ, ख्वाजा सरा से बात करती हूँ। अहमद जिस ढाबे पे बैठते हैं ना, वहाँ अक्सर ख्वाजा सरा आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि बड़े उनमें वो दानिश्वर होते हैं और बहुत क्रिएटिव सोच रखते हैं। जबकि कहने तो ख्वाजा सरा हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या अच्छी तख्लीक कर सकते हैं। अगर हम उनको मौके दें तो वो बहुत अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से वहाँ हम जब मलिर में रहते थे तो हमारे घर में ख्वाजा सरा आता था। अच्छा, मेरे बच्चों भी बहुत एहतराम करते हैं, क्योंकि एहतराम के लायक हैं ये लोग और बहुत मासूम होते हैं। तो उनसे मुझे इस तरह की कोई स्टोरी पता चली थी, फिर मैंने इस स्टोरी को अपनी तख्लीकी बुनियादों पर आगे बढ़ाया। बहुत मैं देखता हूँ कि आप बड़े चाबकदस्ती से कुछ बहुत खूबसूरत से जुमले होते हैं जो आपको हिट करते हैं। इस तरह के जुमले आप लिखती हैं और आपकी जो हम तहरीरें पढ़ते हैं, खासतौर पे फेसबुक के ऊपर जो आप लिखती रहती हैं। अभी आप बताइए कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, आपने पढ़ा उनको, आप हद तक रह गई, आपने कहा कि हाँ मुझे भी लिखना चाहिए? इब्तिदा में तो हमने उनको मुस्तनसर सेन तारड़ को पढ़ा, बानो कुसिया को पढ़ा, खलील जिब्रान को, टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की वगैरह को पढ़ा। फिर मंटो हैं, खालिदा हुसैन है, बेशुमार हैं, इंतजार हुसैन है, तो उन सबको पढ़ा। असमत चुगताई, वाहिदा तबस्सुम इबिन, तो इसमें चुगताई की तहरीरों में कुछ रिफ्लेक्शन आपकी तहरीरों में महसूस होती है? हाँ, वो क्योंकि उनकी भी ज़ाहिर है मुआशरे से ही जुड़ी कहानियां हैं ना, और हम भी मुआशरे में ही रहते हैं और उनको बहुत गौर से देखते हैं। बाज़ लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आता, लेकिन जैसे अब इसमें मेरा एक अफसाना है कोक का अदल बदल, तो हमारी एक पड़ोसन थी, उन्होंने कहा कि उनका जो दूसरा बच्चा है वो उनकी बेटी ने पैदा किया है। तो मैं हैरान थी कि बेटी कैसे, तो कह लेंगी कि हमारे गांव में ना दाइयाँ नहीं होती, और कभी कभी एक आध कोई होती भी, और अगर वो मसरूफ हो तो फिर बेटी ही बच्चा पैदा करेगी ना। और कह लेगी, फिर जब मैंने हैरान होकर इसका को देखा तो कह लेगी मैंने भी अपनी माँ का बच्चा पैदा किया। तो वो सारा उसको लेकर फिर मैंने वो अफसाना, यानी बहुत फेमिनिस्ट स्ट्रीक भी है आपके आपके अफसानों में। खासतौर पर खवातीन को हमारे मुआशरे के अंदर आप किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, या अब जो हमारी खवातीन हैं वो आपको लगता है नहीं वो अब यानी इंडिपेंडेंट है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी? इंडिपेंडेंट होना चाहिए उन्हें। मुझे मजलूम खवातीन से कोई हमदर्दी नहीं होती। देखिए, एक दफ़ा मेरी मासी ने कहा था, और मैं देखती हूँ कि जो घरों में काम करने वाली खवातीन है ना, वो आम पढ़ी लिखी जॉब करने वाली खवातीन से ज्यादा बाइख्तियार है। उसने कहा कि उसने अपने मियाँ से तलाक ले ली थी, कहने लगी बाजी जब अपनी खुद ही रोटी कमा कर खाना है तो फिर हम पिटे भी क्यों। तो मैं लेकिन मैं देखती हूँ कि अक्सर खवातीन जो जॉब भी कर रही हैं, अपने मियाँ को भी संभाल रही हैं और बदसलूकी के भी शिकार होती हैं, उन्हें भी बदसलूकी पर कभी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और उन्हें शटअप कॉल देनी ही चाहिए, और उन्हें मजलूमी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। और मजलूम तो कोई भी हो सकता है, बाज़ दफा मर्द भी होता है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। और आखिर में मैं आपसे चाहूंगा कि कोई आखिरी एक मैसेज जो आप चाहते हैं अपने ऑडियंस को देना, खासतौर पर जो नए पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनको जो आप चाहती हैं कि हाँ भाई ये तुम्हें करना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। कोई ऐसा रिजिड, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो, लेकिन जो आप समझती हैं हाँ यार मैंने ये सीखा अपने तजर्बे के अंदर, और अब मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये लोग जो है अवॉइड करेंगे, ये हासिल करें जिंदगी। क्योंकि मैं तदरीस से वाबस्ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि एक तो मुझे पाकिस्तान में लगता है कि इंसाफ, और सेकंड नंबर पर तालीम। अगर इन दोनों शोबों में इनकलाब आ जाए ना, तो हमारे पाकिस्तान की सूरत मुकम्मल तब्दील हो जाएगी और बहुत तरक्की के राह पर गामजन हो जाएगा। तो तालीम के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूंगी वालिदैन को कि, और असातिज़ा को भी, कि बच्चों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें। आज के बच्चे बहुत ज़हीन है, बहुत सच्चे हैं, उनको अगर वो सही तौर पर उनकी तालीम और तरबियत करें, और अपने दिमाग को भी आप तरक्की याफ्ता बनाएं। ठीक है, आप कभी भी पैदा हुए थे, लेकिन आपको बच्चों की सतह पर आकर सोचना होगा कि बच्चे, इस वक्त के बच्चे आपसे कहीं ज्यादा काबिल हैं। आदाब, जीते रहिए, और बहुत शुक्रिया कि हम दोबारा हमें ये मौका मिल सका कि हम मिल बैठ सकें और उस गुफ्तगू को दोबारा से जहां से हमने छोड़ा था उसका आगाज कर सकें। तो हम पिछली दफा जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपकी कहानियों के हवाले से बात की, आपकी खुदनविश्त के हवाले से बात की, और इस दफा मैं चाह रहा था कि आप इतना, आपका एक बैकग्राउंड है एजुकेशन का, तो क्या आप हमेशा से चाहती नहीं कि आप एजुकेटर बने, आप लिखना चाहती थी, या ये किस तरह की जर्नी थी जिसको आपने यानी कंसीव करना शुरू किया?
हाँ, जब हम छोटे थे ना, तो मैं मंझली हूँ, जो मेरी बड़ी बहनें, तो हम जैसे आमतौर पर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि भाई उनके बच्चे डॉक्टर बने। उस जमाने में बड़ा यही थे, 3 पेशे होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर तो वकील। तो वालिद हर बेटी को चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। तो उन्होंने बड़ी बहन से कहा, तो वो बड़ी फर्माबरदार थी, उन्होंने साइंस ले ली, मैट्रिक में साइंस ले ली और इंटर में भी साइंस ही रखी। लेकिन इंटर में आके जाहिर है वो आसान नहीं होती साइंस, और जो जिस तरह का वहाँ का माहौल था, तो वो 4 पेपर में फेल हो गई फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद सेकेंड ईयर में भी। फिर छोटी बहन ने भी ऐसे ही किया, फर्माबरदार थी, हम ना फरमान थे। तो हमने ना वालिद से कहा कि नहीं, हमें डॉक्टर बनने का बिल्कुल शौक नहीं है, हमें वकील बनने का शौक है और हम आर्ट्स लेंगे। तो वो बहुत हैरान हुए, उनकी ख्वाहिश थी कि कम से कम मैं मैट्रिक तो साइंस से करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो वकील बनना है। तो मैट्रिक में मैंने आर्ट्स से रखी, और उसके बाद जैसा मेरा ख्वाब था वकील बनने का, तो मैंने यही किया। वकालत के इम्तिहान कराची आके दिया और उसमें पास हुई। फिर वहां पर सारे मेल थे, अभी तक किसी खातून ने वहां वकालत कोर्ट में कदम नहीं रखा था, हम वाहिद थे। हमारे वालिद बहुत ज्यादा लिबरल ख्यालात के थे, और हमने उनसे कहा कि हम कराची में प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तो कोई औरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी कदम बढ़ाता है उसके साथ दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं, तो आप यही करो, प्रैक्टिस करो। तो हम वहाँ 3 साल तक अकेले ही कोर्ट में आते जाते रहे, और उसके बाद फिर वाकई 3-4 खवातीन आई कोर्ट में आई, लेकिन हम वाहिद थे। और फिर उस जमाने में ही बार का इलेक्शन हमने लड़ा, और बाकायदा लड़ा, ये नहीं कि हम और खवातीन की सीटों पर आ गए हूँ। तो वहां पे भी हम ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। तो इस तरह हमारा सफर जो है वो वकालत से शुरू हुआ, और हम वहाँ वकील बने। सही। तो क्योंकि मैं खुद भी वकला को पढ़ाता हूँ, तो मुझे और मैं देखता हूँ कि ये ट्रेंड बहुत रीसेंट है कि लड़कियां जो है वकालत की फील्ड में दाखिल हो रही है। और पहले बहुत यानी रिलेक्टेंट भी थी खवातीन के इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेल डोमिनेटेड ये सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। तो ये आपको लगता है बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत बोल्ड इनिशिएटिव था जब आपने लिया, और आपको क्या किसी तरह की मुजाहिमत हुई? नहीं, कहीं से भी मजाक नहीं, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि सिंध के लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा वेलकम दिया, और मुझे किसी तरह की भी वहां परेशानी नहीं हुई, और बड़े आराम से उन्होंने। और उसके बाद ये भी हुआ कि और दिगर वहां की खवातीन आई और उन्होंने वकालत स्टार्ट की। हम बेशक सीनियर होते थे, हमारी वजह से उनको भी सहूलत थी, लेकिन हमें किसी तरह के भी हर्डल का सामना नहीं करना पड़ा। जब हमारी शादी हुई और हम कराची में आए, तो फिर दोबारा से हमने सोचा कि हम कराची में वकालत करें। तो मैं देखकर हैरान रह गई, जब यहाँ की मैं बार में गई, जो जहाँ सारे वकला बैठते हैं ना, तो उसको बार कहा जाता है। तो जब मैं वहां बार में गई, तो मैंने देखा कि खवातीन की बार अलग है, जेंट्स की बार अलग है। मैंने कहा इतना बड़ा शहर और इतनी नैरो माइंडनेस के खवातीन अलग, वहां तो हम सब एक ही बार में बैठते थे, मर्द और औरत एक ही जगह होते थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो और फिर मुझे वैसे भी यहाँ मुझे सही लगा, और फिर मैंने सोचा कि हम वैसे भी शादी हो चुकी थी, बच्चे छोटे थे, सास हमारे साथ नहीं रहती थी। तो फिर हमने तदरीस की तरफ आ गए कि ऐसे में तदरीस ही बेहतर है कि बच्चों के साथ साथ हम भी घर आ जाया करेंगे। बहुत जबरदस्त। आपका, क्योंकि आपने अब शादी का तस्करा किया, तो मैं चाहता हूँ एक आपका कहीं मैंने एक ऐसे पढ़ा था जो आपने लिखा था कि मीर अनीस के घराने की सुन्नी बहू, आई थिंक। तो ये जो तजुर्बा है कि बीइंग अ सुन्नी, सही, एक शिया फैमिली के साथ रिलेशनशिप के अंदर दाखिल होना, आपको लगता है कि हमारी सोसाइटीज जो दो ग्रुप्स हैं, शिया सुन्नी, और उनके दरमियान काफी टेंशन्स भी रहती हैं, आपको लगता है ये सिर्फ प्रिटेंस है? इस तरह की बहुत टेंशन्स होती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते नहीं है, बस ये कुछ जाहिरी सी बात है? क्योंकि हम मिलते जुलते नहीं है ना। अगर हम मिले जुले एक दूसरे के घर आए जाए, तो हमें लगेगा, और हमने बिला वजह एक दूसरे से नफरत पाल रखी, बिला वजह कह रखा है कि शियों के यहाँ तो 40 कुरान होते हैं और शिया तो हज नहीं करते, इस तरह की फजूल किस्म की बातें। लेकिन क्योंकि हम खैपुर में रहते थे, और जैसे कि मैंने कहा ना कि हमारे वालिद बहुत वसीउ नजर थे, तो जब मुजाहिद बरेलवी मशहूर सहाफी हैं, और उनकी बेगम, हम दोनों साथ ही रिसर्च ऑफिसर थे नेशनल बुक काउंसिल में, फहमीदा रियाज का इदारा था। तो वहां पर अहमद नवेद से हमारी मुलाकात हुई, अहमद नवेद ने रिश्ता दिया। तो हमने कहा अगर हमारे वालिदैन एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, हो जाएगी शादी। तो वालिदैन हमारे बकरीद करने कराची आए हुए थे,
हम यहाँ कराची में आ गए थे, सही। तो मुजाहिद भाई और शीरी हमारे घर रिश्ता लेकर आए। तो वालिद ने थोड़ी बहुत हिचकिचाहट का बस इस तरह मुजाहरा किया कि उन्होंने कहा कि अपने वालिदैन को लेकर आओ, और बस ये समझ गया। फिर जब वालिदैन आए तो पापा ने रिश्ता मंजूर कर लिया। तो शादी के बाद मैंने, बल्कि जब भी शादी नहीं हुई थी तो मेरी बहन ने पापा से कहा भी था, मेरे वालिद से, कि आप ये शादी जो कर रहे हैं तो खानदान वाले कितनी बातें बनाएंगे, तो और जरूरी क्या है कि शिया से आप इनकी इफ़त की शादी करें। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर एक बाप अपनी बेटी की शादी खुद कर रहा हो तो किसी की मजाल नहीं होती कोई बातें बनाए। तो ये इतना बड़ा फिक्रा है। मैं समझती हूँ कि अगर सारे वालिदैन इस तरह करें तो ये सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं। सुन्नी की शिया से हो सकती है, शिया की सुन्नी से हो सकती है। असल बात यह है कि दोनों मुतमईन हैं, दोनों खुश हैं या नहीं है। वरना शादी तो नाकाम शादियां तो हमने शिया में और सुन्नी सुन्नियों में देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। नाकामी का ताल्लुक इससे नहीं है। और जब मेरी शादी हो गई तो मैंने अपने ससुराल को बेहतरीन ससुराल पाया, और क्या जबरदस्त लोग। एक तो ये कि हमारी सास मीर अनीस के घराने मतलब उनकी परनवासी होंगी, इतना खूबसूरत बोलती थी, बेपनाह शऊर रखने वाली पढ़ी लिखी खातून भी थी। और हमारे अब्बा इंग्लिश पढ़ाया करते थे ससुर, वो क्या इंसान थे। तो मैं वैसे भी जब मैं यंग थी और शादी नहीं हुई थी तो मैं मेरा हमेशा एक आइडियल होता था। मैं कहती थी कि शादी जिससे उससे करूंगी जिसके माँ बाप बहुत अच्छे हों, क्योंकि शादी के बाद बच्चे तो होते ही हैं। तो बच्चों को बेहतरीन नानी और दादा मिले। मतलब नानी ननिहाल तो हमारी है ही अच्छी बच्चों की, लेकिन ददियाल इनकी कमाल। आप तो जानते हैं मेरे बच्चों को कितने अच्छे हैं। वजह ये कि उनके ननिहाल ददियाल दोनों से उनकी तरबियत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब एक सवाल मेरे जहन में कुल बुला रहा है, और मैं ये सोच रहा था कि राइटिंग और शॉर्ट स्टोरीज लिखना एक बहुत मीनिंगफुल एक्ट, यानी एक ऐसे समाज के अंदर जहां लोग ऑब्सेस्ड हैं अपनी हैप्पीनेस से, वो यानी टेलीविजन देखते रहते हैं, एक यानी प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। आपने क्यों इंतखाब किया कि आप स्टोरीज लिखना, और वो क्या ऐसे वाकयात हैं, वक़ुआ हैं जिनको आप नहीं चाहती कि वो उन्हें फरामोश किया जाए, उन्हें लिख देना चाहिए? क्योंकि मेरा ताल्लुक छोटे शहर से है और फिर इतनी ज्यादा फील्ड्स में काम किया, वकालत करती थी तो डिफरेंट किस्म की खवातीन से राब्ता रहता था, और तो इतनी ज्यादा स्टोरीज हमारे पास है कि हम वो पूरी हमारी जिंदगी 4 जिंदगी में मिले ना तो हमारे पास स्टोरीज की कमी नहीं है। तो इस वजह से एक तो ये वाली बात थी, ऊपर से हम सोचते हैं कि जो हम महसूस करें वो हम दुनिया को ही बताएं। बाज कहानियां ऐसी होती हैं कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कहानी हकीकत हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है कि ना समझ ना काबिल यकीन चीजें इंसानों की जिंदगी में हो रही होती है। आप कहानियों के जो किरदार हैं वो आपको लगता है कि वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं बाज दफा, या आप नहीं, ऐसा नहीं होता, आप उन्हें खुद ही अपनी इमेजिनेशन से कार्व आउट करती हैं, खुद ही क्रिएट करती हैं? नहीं, मुझे तो जो मेरे जिंदगी की कहानियों के जितने भी किरदार है ना वो सारे ही हकीकी हैं। बस ये कहानी में लाते हुए जाहिर है को उन्हें जरा सा हमें ऐसा करना पड़ता है। तो नहीं, कोई मसला नहीं, आप बात करते हैं। तो उनको फिर हमें के लोगों के पढ़ने के काबिल हो सके उसके लिए हमें एडिटिंग वगैरह में करके, लेकिन कहानियों के किरदार सारे ही असली होते हैं। और बाज लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन ऐसा ही है। जिंदगी इतनी ही तल्ख है, लोग जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, और बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम बयान कर भी नहीं सकते, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। अच्छा, आपने जो फिक्शन लिखा है वो बहुत यानी रियलिज्म की जो खास जॉनरा है उसके अंदर, कभी आपने सोचा कि कुछ फैंटेसी फिक्शन लिखा जाए, या जैसे हम साइंस फिक्शन कहते हैं, इस तरह आता है कि हाँ भाई अगर जिंदगी जो है, लेट्स सपोज आज किसी से मेरी बात हो रही है तो उसने कहा अगर दुनिया उल्टी चलने लगे तो क्या ऐसा तो नहीं होगा हम माजी में चले जाएंगे टाइम ट्रेवल करके, मेंटल टाइम ट्रेवल करके? हाँ, नहीं, इस तरह के मैं तसव्वुर नहीं करती। हाँ, इस पर बड़े अच्छे मैंने पढ़े हैं जो टाइम ट्रेवल करके 50 साल बाद वाली भी कहानियां मैंने पढ़ी है, 50 साल पीछे की भी पढ़ी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि ये तो खुद से होता है ना कि आपके कैसे आमद हो रही है। तो उस लिहाज से मेरे पास अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ, एक नॉवेल का आइडिया मेरे जहन में बहुत अरसे से कुल बुला रहा है और मैं चाह रही हूँ कि मैं वो नॉवेल जरूर लिखूं। वाह, तो कुछ आप बताएंगे कि उसके अंदर किस तरह की सिचुएशंस हैं, किस तरह की कुछ यानी उसके हाईलाइट बता दें कि आप क्या सोच रहे हैं कि लाइंस के ऊपर? हाँ, जैसे झूठ पर के 2 लड़कियां हैं और उनके वालिदैन झूठ बोलते हैं,
اور وہ لڑکیاں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہ کیسے بتائیں. اور کیونکہ میں نے وکالت میں خاصا عرصہ گزارا ہے تو وہیں سے لیا ہے, اور اب میں زیادہ نہیں بتاؤں گی, لیکن یہ کہ وہیں سے لیا ہے سارا کہ کس طرح ہوتا ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں جوہر کہ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں, قرآن شریف پر قسم کھا کر جھوٹ بولتے ہیں. میں نے عدالت میں پیشہ ور گواہ دیکھے, جج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کل اس نے گواہی دی ہے تو آج بھی یہ گواہی دے رہے, جج اسے نہیں ٹوکتا. اور جب ہم تاریخ لیتے تھے تو وہ جو کلائنٹ ہے اس کی مرضی سے تاریخ دیتے ہیں کہ وہ, اور جو دوسرا ہے جو بیچارہ اس ریڈر کو اتنی فیس نہیں دے سکتا, اتنے پیسے نہیں دے سکتا کہ اس کی سہولت کے مطابق تاریخ ملے, تو اسے نہیں ملے گی. سہولت کی تاریخ اسے ہی ملے گی جس نے پیسے دیے ہوں گے ریڈر کو. یعنی تاریخ لینے کے بھی پیسے. پھر وہ کہتے تھے کہ جج صاحب کو فریج پہنچانا ہے, تو یہ عام بات ہے. میں ہمیشہ میرا یہ خواب ہے کہ اگر پاکستان میں انقلاب آیا نا, میں نے اس دن بھی بات کی تھی, انصاف اور تعلیم, یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاکستان میں بہتر ہو جائے نا تو پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے. انصاف, سب سے پہلے انصاف, اور دوسرے نمبر پر تعلیم. صحیح. تو ایک رائٹر ہے اور ایک فلسفی ہے, اس نے بڑی زبردست بات کہی ہے. اس نے کہا کہ دیر از نو رائٹ, جو مائٹ ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ رائٹ کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم میں اور جو انصاف ہے, یہ سماج کے اندر جب تک طاقت کا توازن جو ہے وہ بدلے گا نہیں, اور شاید ایک ایسے لوگ جو کہ طاقت کو صحیح جسٹیفائڈ طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں, وہ لوگ نہیں آئیں گے, اس وقت تک ہمارا سماج کے اندر تعلیم اور انصاف جو ہے وہ ہمیشہ خواب ہی رہے گا, ایک یوٹوپیا. اسی لیے تو میں ہر جگہ نا پتہ یہ بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں مجھے ایجوکیشن کا وزیر بنا دیا جائے. اور واقعتاً حالانکہ اس میں کیا ہے, اس میں لیکن مجھے بہت ساری تبدیلیاں کرنی ایجوکیشن میں, کیونکہ میں نے تقریباً 22 سال ہو گئے میں ایجوکیشن سسٹم میں رہتے ہوئے. میں نے آغا خان بورڈ, میٹرک سسٹم بورڈ, کیمبرج سسٹم اور کالج میں گریجویشن لیول پر سب جگہ پڑھایا ہے. اور کہیں 2 سال جاب کر کے چھوڑ دی, کہیں 4 سال, کہیں 6 سال, کہیں 1 سال, کہیں 1.5 مہینہ, کیونکہ میں اتنا زیادہ مایوس ہو جاتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پورے مافیا ہے. آپ دیکھو کہ کیا ضرورت ہے کتابوں کی اتنی, لیکن کیونکہ اسکول والوں کو بک سیلر سے کمیشن ملتا ہے. بھائی ایک پہلی کلاس کا بچہ اور اتنی ساری کتابیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ 1 سال آپ اردو پڑھائیں, پھر 2 سال بعد آپ اسلامیات پڑھائیں, پھر 2 سال بعد آپ سائنس پڑھائیں. جیسے آپ دیکھیں کہ میٹرک میں 9 میٹرک میں تو کتنے کم سبجیکٹ ہوتے ہیں, لیکن 1 2 3 4 5 میں 8 سبجیکٹس. یہ تو اتنی بدتمیزی کی بات ہے. اور یہ لوگ سب رونا روتے رہتے ہیں کہ جی قومی زبان, لیکن ہمارے ہاں قومی زبان جو اردو میں, اب تو ہمارے ہاں گورنمنٹ اسکول نے بھی ایسا کر دیا ہے کہ جی صرف ایک کتاب اردو کی ہوتی ہے, باقی ساری انگریزی کی. اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اگر ایک کتاب اردو کی, اس کو کم از کم تمیز سے پڑھائیں. لیکن اردو کی جو ٹیچر ہے اس کی سیلری سب سے کم ہوتی ہے ہمارے یہاں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بچوں کے ساتھ جس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک کتاب صرف اردو کی, باقی سب انگریزی میں, تو وہ اردو بچے, اور جو نصاب ہے وہ اتنا احمقانہ ہے اردو کا. اردو کی آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو لگے گا کہ اسلامیات کی کتاب ہے, آپ کو لگے گا یہ پاکستان اسٹڈیز کی کتاب ہے. اردو کی کتاب میں, اردو کی کتاب ہے نا, اس میں لٹریچر ہونا چاہیے نا, اس میں سارے شاعر ہو, چاہے وہ بے شک انٹرنیشنل ہی ہو, اور جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ان کے شاعر ہوں, ان کے ادیب ہوں, تاکہ بچوں کو موٹیویٹ ہو, وہ اردو کی طرف راغب ہو. لیکن محمد بن قاسم کا سبق اردو کی کتاب میں کیوں ہے, حضرت ابوبکر اردو کی کتاب میں کیوں ہے, جبکہ وہ اسلامیات میں بھی ہے. اچھا, یہ مجھے نہیں تھا. ہاں نا, اسلامیات ہی تو سب, ہسٹری ہی اور اسلامیات آ جاتی ہے. تو آپ لٹریچر دیں نا, گریڈ 1 سے لٹریچر ہو. تو اور اسی طریقے سے ٹیچرز کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے, اگر آپ ٹیچر کو, بہت سارے اسکولوں میں, میں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی, وہاں وہ سارے مہمانوں کو بلا کے کلاس کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ٹیچر کے پاس دیکھیں, ہم نے ٹیچر کو کرسی نہیں دی ہوئی ہے, ہمارے یہاں ٹیچر کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں, تمہارا چوکیدار بیٹھا ہوا ہے, تم بیٹھے ہوئے ہو, اور ٹیچر کھڑا ہو کے پڑھائے. اور ہم کبھی بچے کو کرنے کے بہانے اپنے ٹیک لگا لیتے, اسی وقت ہیڈ ماسٹر آ جاتا تو ہمیں کال کر لیتا تھا, آپ بیٹھی ہوئی کیوں تھی.
तो टीचर के साथ सबसे ज्यादा बुरा सलूक होता है। हेड मिस्ट्रेस या जो ओनर या वो बड़े आराम से टीचर को बुलाते हैं, किसी भी बच्चे पहले उनको चाहिए कि बिठाएं उसके बाद बात करें, नहीं वो टीचर खड़ा हुआ है, आपने डांटा डपटा जलील किया। तो हमारे यहाँ तदरीसी निज़ाम और टीचर के साथ सलूक बहुत बुरा है, उसकी सैलरीज कम है और फिर उसके माशरे में कोई मुकाम भी नहीं। मुझे एक मरतबा इतना अफसोस हुआ कि मेरी अपनी रिश्तेदार जो घर बैठी हुई थी और उसका मियाँ कोई ऑफिसर था, वो मुझे कहने लगी कि उसे पता था मैं वकालत करती रही हूँ कि तुम अभी तक टीचर फटीचर हो। तो मैं हैरान हो गई कि वो जाहिर औरत भी मुझे टीचर फटीचर कह रही है। तो ये वजह ये है कि हमारे हाल से लगता है कि हम फटीचर हैं। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। यानी आपके ख्याल में हमें किस तरह की हमारी पॉलिसीज के अंदर, पेडागोजी के अंदर किस तरह की तब्दीलियां हमारे तालीमी निजाम के अंदर हमें करनी चाहिए? आपके ख्याल में, मैं जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं जमील अब्बासी साहब की वाइफ से बात कर रहा था, वो अमेरिका से आई हैं और वो एजुकेशन के हवाले से वहां पे कुछ तालीम हासिल कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं। तो वो मुझसे कहने लगी कि जो बच्चे हैं उनकी फिजिकल हेल्थ, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं यानी 1 से लेके 8 तक का जो बच्चा है इन सालों के अंदर, उनकी फिजिकल हेल्थ, और ये कि उनको आप एक्सपोजर दें उन्हीं की जबानों में लिखे हुए अदब का, उन्हीं की जबान में उनको आप सिखाएं। आप बिल्कुल एक फॉरेन लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज कर देते हैं, या हम तालीमी निजाम को आप किस तरीके से इसको? अब तो खैर बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत आसान हो, क्योंकि सभी कुछ इंग्लिश में है ना, तो वो उर्दू की बनिस्बत इंग्लिश में ज्यादा सहूलत महसूस करते हैं और इंग्लिश को सही। लेकिन हमारे यहाँ जैसे मैंने अभी पहले कहा कि मुझे वजीर तालीम बना दिया जाए। अब जैसे यूनिफॉर्म, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो हमारे यहाँ महंगी फीस वाले स्कूल हैं तो वहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते, नहीं, मैंने देखा है बहुत गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बीकान सिटी बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है। तो नहीं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से खवातीन को शौक होता है कि उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़े। मैं इसीलिए महंगे कह रही हूँ, बड़े स्कूल नहीं कह रही इनको। लेकिन फिर वहां पर, हाँ वहां पर लेकिन क्या होता है कि बच्चा, अच्छा यूनिफॉर्म, सर्दियों का स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अलग, गर्मियों का स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अलग, और आम यूनिफॉर्म तो है ही अलग। शूज सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, वालिदैन कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अच्छा, फिर अगर एक बच्चा जो है, एक दिन मैंने देखा एक बच्चा जो था वो हाफ स्लीव्स पहने हुआ था। मैंने कहा बेटा आपकी हुडी कहाँ है? कहने लगा बैग में। तो मैंने कहा बैग से निकालो ना। तो कहने लगा कि नहीं वो तो स्कूल यूनिफॉर्म के नहीं है, मैडम मुझे डांटेंगी। तो मैंने कहा नहीं डांटेंगी मैडम, आप पहन लो। तो उसने पहन ली, लेकिन मैंने देखा कि मैडम उसको डांट रही थी कि आपने वो वाली स्कूल की हुडी क्यों नहीं पहनी, क्योंकि तो वो तो घर से तो माँ ने उसको दूसरी हुडी दे दी थी जो आम सी थी, स्कूल की हुडी नहीं थी। तो आप देखिए कि बच्चे ये कितना बड़ा जुल्म है। ये शुक्र है कि अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं स्कूल वाले सख्ती नहीं करेंगे, अगर बच्चा सर्दियों का यूनिफॉर्म नहीं पहना है, हुडी सर्दियों की नहीं पहना है, स्वेटर, तो आप सख्ती नहीं करेंगे। मैंने कहा शुक्र है कि कुछ तो इंसानियत है। हमारे यहाँ ये बहुत गलत तरीका है, एकदम से बेहिस। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ नहीं लोगों के पास बहुत पैसा है और देखो मॉल में इतने लोग नजर आते हैं, ये लोग ऐसे ही गुर्बत का शोर मचाते हैं। अगर आपने कभी किसी को मॉल में देख लिया तो जरूरी तो नहीं है कि वो क्या, आपने हो सकता है आपने उसे देखा, वो हो सकता है 2 साल में एक दफा ही गया हो मॉल में या खाना खाने के लिए, या कोई और उसको लेके गया हो। हमारे यहाँ इतनी बेहिसी है कि कभी किसी के, अब जैसे किसी की फीस रह जाती है ना 2 महीने से 3 महीनों से, तो यही कहा जाता है नहीं ये फीस नहीं देते, बहुत अमीर लोग हैं। तो बहरहाल ये सारे हैं मसाइल। और ये वाली जो बात है कि यूनिफॉर्म और बुक्स, ये तो मुझे लगता है कि स्कूल वालों की उनसे मिली भगत है, वरना ये तो कर ही सकते हैं। और मैं आपके तवज्जो से अगर कोई देख रहा हो मुझे, तो वो इस बारे में करे कि सिलेबस कम करे, निसाब कम करे, और यूनिफॉर्म ये जो 4-4, 5-5 यूनिफॉर्म है ना, इसकी शर्त खत्म की जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक तालीमी हवाले से अब क्योंकि गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी महसूस करता हूँ कि जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं ऐसे बच्चों को जो कि लेट्स सपोज CS कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, या वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जो फोकस है इस वक्त उन बच्चों का ये होता है कि हम एक फील्ड के अंदर मास्टर्स हासिल कर लें, बस एक फील्ड के अंदर। जिंदगी की इतनी बड़ी वुसअत है जिंदगी के अंदर, लेकिन आप उसमें से सिर्फ एक स्मॉल फील्ड के अंदर थोड़ी सी आपने मास्टरी हासिल कर ली, लेकिन एक बिग पिक्चर जो लाइफ की है, जिसका आपका एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि वो एक बिगर पिक्चर क्रिएट करे, काबिल बनाए बच्चों को, काबिल बनाए, इस तरह इनेबल करे कि आप क्रिटिकली देख सकें लाइफ को।
तो आप लगता है कि ये भी एक चीज है जो मिसिंग है हमारे सिस्टम में से? और बड़े बड़े स्कूलों में सारा साल तफरीहात होती रहेंगी, आज ये गाला है, आज ये एक्टिविटी है, आज पिकनिक है, आज फिल्म है, आज ये वो, मतलब प्राइवेट स्कूलों में होता रहेगा। और जैसे एक महीना रह जाएगा वो सिलेबस कंप्लीट करवाना है, क्योंकि यूनिफाइड सिलेबस है पूरे पाकिस्तान में, एक ही सिलेबस। जैसे अगर बीकन हाउस है, सिटी है और दूसरे स्कूल, तो जल्दी जल्दी सिलेबस मुकम्मल करवाए जा रहे हैं, और फिर वो हमने कॉपियां भर दी और फिर बच्चा रट्टा लगा रहे। तो क्या यही तो वजह है कि जितने बड़े स्कूल है वहां बच्चे कोचिंग और ट्यूशन जाते हैं, सिर्फ पैसा फेंकना और कुछ नहीं। तो मैं तो समझती हूँ कि बजाय इसके कि प्राइवेटाइजेशन हो, मुझे तो दिल चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने उसमें ले लेंगे, इन सारे स्कूलों को सरकारी हो जाना चाहिए। तो अब मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोशली क्रिटिसिज्म आपने बना लिया है तालीम के हवाले से, कुछ आप ये बताइए कि ये जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी तालीमी अशराफिया, और इसके साथ साथ जो हमारी यानी पॉलिटिकल अशराफिया है, इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपको लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसको इवॉल्व करने की जरूरत है, या इसको बेहतर करने की जरूरत है, और इसके पीछे जो फोर्सेस हैं वो बहुत, आपको लगता है कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको हम किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं, या वो जो है बगैर ऐसे अनासिर के जो कि उनको मैनिपुलेट करते हैं, मनोवर कर रहे होते हैं पीछे से, उनके बगैर आ सकती हैं? देखिए, ये जो भी दूसरी फोर्सेस आती हैं, वो आती क्यों है? वो इसीलिए कि डेमोक्रेट्स जो हैं हमारे, वो कुछ ऐसे करते हैं, खुद उनको लाते हैं, खुद पुश करते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो जो अदर साइड के पॉलिटिशियंस होते हैं वो मिठाई बांट रहे होते हैं। तो और फिर बाद दफा तो हम भी समझते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो टेक ओवर कर लिया, कई मरतबा हालात इतने खराब हो जाते हैं, इतने मुल्क में वो हड़तालें और ये सब, तो पाकिस्तानी वो खुद चाह रहे होते हैं कि भाई हमें सुकून मिल जाए और कोई टेक ओवर कर ले। जैसे एक तो और फिर दूसरी बात ये कि हम देखते हैं कि लोग जमहूरियत को आइडियलाइज तो बड़ा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे मुल्क में जहालत कितनी है, गुर्बत कितनी है। तो वोट तो वैसे भी मैं उसे दूंगी ना जो मुझे थोड़े पैसे दे देगा, जो मुझे कहेगा कि मैं तुम्हारे बेटे को नौकरी दे दूंगा, मैं तो उसे वोट दूंगी, क्योंकि मुझे तो अक्ल ही नहीं है, वैसे भी पढ़ी लिखी भी नहीं हूं मैं। और हमारे यहाँ यही है, तो लोग वोट अपनी अपनी दोस्ती की बुनियाद पर देते हैं, या जिससे हमें फायदा नजर आएगा, जिसने बहुत अच्छे दावे, क्योंकि मैं जाहिल हूं, मुझे उसके दावे पर पूरा यकीन आ गया है, उसके नारों पर यकीन आ गया है। तो हमारे यहाँ तो यूं भी इलिटरेसी इतनी ज्यादा है, और जहालत, और बाज दफा तो पढ़े लिखों में और ज्यादा जहालत है। तो उसकी वजह से ये नहीं सही हो सकता जब तक कि हमारे पॉलिटिशियंस खुद अपने आप की दुरुस्ती ना करें। जब तक कि वो अपनी दुरुस्ती नहीं करेंगे, ये सब होता रहेगा, और एक दूसरे के आने जाने से मिठाइयां बांटते रहेंगे। अब क्या हुआ था, जब 2012 में नवाज शरीफ आए तो इन्होंने 35 पंचर, इमरान खान ने 35 पंचर 3 महीने बाद ये सड़क पर आ गए थे। वो तो जब आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ तो इन्होंने अपना धरना खत्म किया। भाई चलने देते ना। फिर जब इनकी 2018 में हुकूमत आई, जाहिर इन्हें भी फौज लेकर आई थी, तो इन लोगों ने पीछा कर लिया, क्योंकि इंतकाम तो है हमारे यहाँ, भाई चलने दो। इन्होंने भी बुरा किया, आदम एतमाद का वोट और ये वो सब क्यों लेकर आए, चलने देते। तो लेकिन हमारे यहाँ हम खुद ही तो, भाई कोई इनको नहीं करता, खुद हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी मेच्योरिटी है ना, सबसे अच्छी वो पीपल्स पार्टी की है। क्योंकि उस जमाने में भी जब आदम एतमाद आ रहा था, इन्होंने जरदारी ने कहा था कि नहीं ये नहीं करो, ये हट गए थे। ये उस वक्त उसका हिस्सा थोड़ी थे, जरदारी साहब हिस्सा नहीं थे, ये हट गए थे। लेकिन जो अभी आईनी तरमीम आई है 27वीं, उसको जिसके अंदर मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के लोग भी मुखालफत कर रहे थे, हाँ। और पीएमएल नून के लोग भी मुखालफत कर रहे थे। आपको लगता है ये इसके नतीजे में और जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो ताकतवर हो जाएंगे? ये तो सीधा किसी एक पॉलिटिशियन की, या यूं कहें कि जो बहुत ज्यादा उसने अवाम को और बेचारे मासूम लोग, और खासतौर पर जी जनरेशन जो है, उसे तो बेचारियों को कुछ नहीं पता ना। आपने देखा ना कि उन्होंने बांग्लादेश में कर तो दिया, लेकिन अब क्या है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जनरेशन जी, बहरहाल जनरेशन जी है, जज्बात में कर तो दिया। 400 स्टूडेंट्स भी मारे गए,
और हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जनरेशन जी ही इमरान खान के साथ है, और सिर्फ ये इस वक्त जो भी हो रहा है 87 जनवरी सब आप जानते हैं कि इस पीटीआई को वो करने के लिए किया गया है। और अब क्या किया जाए कि इन लोगों ने इतना ज्यादा मुल्क, ऐसा लगता है कि जैसे हम पीटीआई की बातें नहीं सुन रहे, हम इंडियन चैनल की बातें सुन रहे हैं। इस हद तक ये लोग एंटी पाकिस्तान की बातें करने लगे हैं ना, तो इस वजह से अब बिल्कुल। चलिए, अब मैं एक आपकी कहानियों की तरफ थोड़ा सा टर्न लेते हैं, और मुझे ये बताएं कि ये किरदार हैं आपके, आप इनकी सब्जेक्टिविटी तक, इनकी दाखिली और अंदरूनी गुफ्तगू तक कैसे पहुंचती हैं? आप कैसे, मैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अगर कोई कहानी क्रिएट करूंगा तो जो कहानी के किरदार होंगे वो कहीं ना कहीं मुझसे मुशाबिहत रखते होंगे। तो ये आप इतने डिफरेंट किरदारों के जो इनर डायलॉग्स हैं उस तक कैसे आपकी रसाई हो जाती है? हाँ, क्योंकि जो भी मेरी कहानी के किरदार होते हैं ना वो हकीकी होते हैं, और मैं उनसे मिली हुई होती हूँ, उनके घर भी गई होती हूँ, वो मेरे घर आए थे। जैसे अब हमने जो ये कहानी लिखी थी बांझ, जिसमें ख्वाजा सरा का जिक्र है, तो हम उनसे मिलते हैं, ढाबे पे बैठते हैं, मैं उनसे तारुफ लेती हूँ, उनके नाम सब पूरे, मुझे बहुत शौक है, वो भी आराम से, क्योंकि जब मैं उनको बिठाती हूँ, चाय पिलाती हूँ, तो उनको लगता है कि हम उन्हें इज्जत दे रहे हैं, तो वो अपनी कहानी बताते। तो इस तरह फिर मुझे वो सारी उनकी जो गुफ्तगू होती है उससे मैं कहानी बनाती हूँ, बल्कि बनाती क्या हूँ, मुझे खुद कहानी पता चल जाती है। तो इस तरह, और इसी तरीके से खैरपुर में रहने की वजह से मुझे बहुत पता। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जौहर, आप तो मेरे घर आते रहे, आपने मेरे हालात खैर जब काफी अच्छे हो चुके थे जब आप हमें मिले, लेकिन हमने बहुत बुरा वक्त गुजारे और बहुत बुरे बुरे मोहल्ले में रहे। तो उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमें, क्योंकि हम एक तो ये कि हमने खुद वो सब फेस किया कि जब हम, जिसको कहते हैं ना साया भी साथ छोड़ देता है, तो हमारे साथ लिटरली यही हुआ। जो आपके बहुत बुरे हालात हो जाते हैं ना, तो लोग आपसे कतराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको मदद करनी पड़ जाए, चाहे मैं सवाल ना भी करूं लेकिन उनको ना मदद करनी पड़ जाए। तो हमने वो वक्त गुजारे है, तो उसमें फिर हमारे इर्द गिर्द हमारे ही जैसे लोग थे, गरीब गुरबा, और तो उससे फिर मुझे कहानियां में बहुत मदद मिली। और सबसे बढ़कर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अहमद नवेद के साथ ने मुझे बहुत पुख्तगी दी। जब मैं शादी से पहले कहानियां लिखती थी ना, और शादी के बाद भी लिखी, तो शादी के बाद मैंने एक कहानी अहमद को सुनाई, तो मैंने कहा क्या बकवास है, तो मैंने उसे फाड़ के फेंक दिया। फिर एक दफा ना अहमद नवेद की किताब का पेशकश लिखा और फिर लिख कर रख लिया, छुपा लिया। फिर एक दिन उनसे कहा कि मैं अपनी किताब का पेशकश लिखूं, तो कहने लगे लिखो। तो मैंने कहा मैंने लिखा है। तो खैर मैंने सोचा अभी फिर कहेंगे कि फाड़ो इसको, तो लेकिन जब उनको सुनाया तो उनको इतना अच्छा लगा, और फिर सबको सुनाया, सबने ही तारीफ की। उसके बाद से मेरी हिम्मत बंधी, फिर मैंने एक अफसाना लिखा तो बहुत ही खुश हुए, कहने लगे बहुत अच्छा लिखा है। और फिर वो नक्दो नजर की महफिल होती थी, नक्काश काजमी साहब करते थे उसे कंडक्ट आर्ट्स काउंसिल में, तो वहां पढ़वा दिया, वहां खलाक अहमद साहब और दूसरे सीनियर, तो उन्होंने बहुत तारीफ की। तो फिर हम समझ गए अच्छा ऐसे लिखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अहमद नवेद ना होते ना तो मेरी शायद मैं वही बचकाना अंदाज से लिख रही होती। सही। चले, आपने अंकल अहमद नवेद को भी क्रेडिट दे दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके कि बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि आपने बहुत सफर किया पॉवर्टी के अंदर, और आपने इस तरह के लोगों का मुशाहिदा किया बहुत करीब से। और ख्वाजा सरा की जो कहानी थी वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, और जो कहानी आपने घुटन लिखी है उसके अंदर जो खातून है, आप मुझे जरा वो बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रिप्रेसिव है, और वो चाह रही है किसी तक पहुंचना, कोई उसकी बात सुने। वो मुझे आप कुछ उस कहानी के बारे में बताएं, और ख्वाजा सरा की कहानी के बारे में भी मुझे चाहिए कि मैं आपसे मजीद सवाल करूं। हाँ, घुटन भी जाहिर है वो मेरे अपने घर की कहानी है कि वो जाहिर है कि एक जनरेशन का, और फिर हमारा, हम बच्चों की बात नहीं समझते, बच्चे हमारी बात नहीं समझते। असल में तो मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि हम बूमर्स हैं ना, हमें जेनजी की बात को समझना चाहिए, क्योंकि हमें वक्त के लिहाज से अपने आप को ढालना चाहिए। तो उसमें भी वो जो खातून है ना, तो वो बच्चे को समझ नहीं रही है, और वो उसमें है। और फिर यही वजह होती है कि बच्चा घर छोड़ के चला जाता है, लेकिन फिर बच्चा भी घर को मिस कर रहा है, माँ को मिस कर रहा है, और माँ भी उसे मिस कर रही है। और फिर वो सोचती है कि उसका जो था उसने समझा नहीं, वो समझा नहीं, क्योंकि अब जो मौजूदा बच्चे हैं ना, ये ग्लोबल विलेज है, उनके हाथ में मोबाइल के सूरत में एक पूरी दुनिया है,
वो देख रहे होते हैं कि और जगह पर क्या हो रहा है, वो अपने आप को पता नहीं कहाँ देखना चाहते हैं। और खासतौर पे मेरे बच्चों ने तो बहुत गुर्बत सही है, और मैं भी चाहती थी कि वो उस गुर्बत से निकले। सही। तो जब वो मैट्रिक करके निकले थे तो मैं उनको बहुत ज्यादा बातें सुनाती थी। उनको मैंने छोटे हिस्से थे तो मैंने उनको ट्यूशन की तरफ डाला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये गुर्बत से हैं। तो उस वजह से मैं बहुत बौखलाई हुई थी। और फिर मेरे ही दिए हुए सबक की वजह से बच्चे जब वो मुकाम हासिल करने के तगौदा में थे तो मैं समझ नहीं पा रही थी उनको, उनकी तन्हाई के, उनको तन्हा रहने दूं, उनको उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखूं। तो वो उसमें दरअसल है तो वो मेरी ही कहानी, लेकिन उससे मैंने माओ को पैगाम दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से अब आखिर में मैं ही चाहूंगा कि आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसे जो आप समझती हैं कि इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ के लेसन्स हैं, आप उनको अगर कन्वे करना चाहें। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे अच्छी बात मुझे अपनी लगती है वो ये कि मैंने हमेशा ना जो मौजूदा हालात है ना उससे निकलने की कोशिश की, और जो है उस पर शुक्र किया। और हाँ, और वाकई शुक्र करने को बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सही सलामत है, आपका जहन सही सलामत है, आप जॉब कर सकते हैं, आपके बच्चे इतने ज़हीन है, ये कितनी अच्छी बात है। अब उसको लेकर आप आगे बढ़े, जरूरत नहीं है कि आप बिला वजह खुद तरसी में मुब्तला हो जाएं। तो मैं यही कहूंगी कि जो है जैसा है उससे आगे निकलने की कोशिश करो, और सेल्फ पिटी मत हो। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत ममनून हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।